आज 1 मिनट में कितने सेकंड हो साहब अब आपका बहुत शुक्रिया मौका मिला यहाँ आने का। तो इस मौका पर इसकी जो तफसीर मुझे बताई गई है कि खुदाम अहमदिया की चैरिटी है, इसमें दोस्तों को चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और इसको कामयाब बनाएं। इसका जो टारगेट है उसको ज़रूर पूरा करें और हर बंदा, हर दोस्त ये कोशिश करे कम अज़ कम 10 पाउंड, 15, 20, 30 जितनी हस्बे इस्तादात इसमें ज़रूर हिस्सा लें। कोई दोस्त इससे बाहर ना रहे और हम मिलजुल कर इस टारगेट को पूरा करें और इसकी अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे। मैं खिलाफत के बारे में कुछ पढ़ूंगा। कफ़े पाए खिलाफत से हुए रोशन जहां कितने, कफ़े पाए खिलाफत से हुए जो रोशन जहां कितने, जरा सी अदना कोशिश से हुए दरिया रवां कितने। कफ़े पाए खिलाफत से हुए रोशन जहां कितने, जरा सी अदना कोशिश से हुए दरिया रवां कितने। रवां है कारवान अहमदियत जानबे मंजिल, रवां है कारवान अहमदियत जानबे मंजिल, अभी फिक्रो नज़र के दरमियां हैं काजियां कितने। सईदाने वफा से रंगबू कायम है दुनिया में, सईदाने वफा से रंगबू कायम है दुनिया में, खिले खूने शहादत से जहां में गुलस्तां कितने। लगी ताज़ीर ताहिर पर रहे मसरूर जिंदा में, लगी ताज़ीर ताहिर पर रहे मसरूर जिंदा में, खिलाफत के अमीनों ने दिए हैं इम्तहां कितने। क़यादत मिल गई मसरूर की हमको ज़माने में, क़यादत मिल गई मसरूर की हमको ज़माने में, उसी की फिक्र से उभरे अमीरे कारवां कितने। परिंदों को मिली जब नत के गोयाई तो वो बोले, परिंदों को मिली जब नत के गोयाई तो वो बोले, यहाँ मसरूर के शहदाई भी हैं खुश बयां कितने। एक छोटी सी है, अपनी अकीदतों का न हरगज़ शुमार कर, दिल से मसीह मेहदी के खुलफा से प्यार कर। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अपनी अकीदतों का न हरगज़ शुमार कर, दिल से मसीह मेहदी के खुलफा से प्यार कर, दामन तेरा खलूस से खाली ना हो कभी, दामन तेरा खलूस से दामन तेरा खलूस से खाली ना हो कभी, इसमें गोहरे वफा के अभी ताबदार कर। तुझको है गर यकीन की मंजिल की आरज़ू, तुझको है गर यकीन की मंजिल की आरज़ू, दारो रसन की सिमत नजर न बार बार कर। तस्कीन नसीब हो हमें फैज़ रसूल से, तस्कीन नसीब हो हमें फैज़ रसूल से, दस्ते दुआ दराज सुए किरदगार कर। होने को है अताओं की बरसात जल्द ही, होने को है अताओं की बरसात जल्द ही, उठी है कादियां से घटा एतबार कर।
بہت اچھا بہت اچھا. تو اس سے جو لرزاں ہو چکے تیرے ہی دشمن، تو اس سے جو لرزاں ہو چکے ہیں تیرے ہی دشمن، فکر و نظر کے دام سے آسی دوبار کر، اپنی عقیدتوں کا نہ ہرگز شمار کر. شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ رزاق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ رزاق صاحب نے کہا کہ اکثر مقصد تو آپ سب کو یہاں پہ گیدر کرنے کا یہ تھا کہ سارے ایک کیجول ماحول میں ہنس سکیں، کیونکہ میرا خیال تھا ہم سب کی ہنسی گم چکی تھی، تو یہ ہنسی بھی بڑی ضروری. رزاق صاحب نے ہمیں دوبارہ ہنسنے کا موقع دیا. اب میں گزارش کروں گا محمد اسحاق صاحب سے، جو کہ ہمارے بھی اب لندن سے آئے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنے کلام سے محفوظ کریں. اسحاق صاحب جب تک تیار ہوتے ہیں کلام سنانے کے لیے، جیسے ابھی ہمارے سعید صاحب نے قائد صاحب نے بتایا ہے، خدام احمدیہ کی جو چیریٹی کے لیے فنڈ ریز کر رہی ہے، بات یہ ہے کہ خدمت خلق جو ہے جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس شعبے میں آج سے نہیں بلکہ پہلے دن سے اس شعبے میں ہر محاذ پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت خلق میں ہم سب سے آگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو امام ہیں انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا کہ میرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق کا، ہمیں کارم ہمیں بارم ہمیں رسمم ہمیں راہم، کہ انسانیت کی خدمت جو ہے یہی میرا مذہب، یہی میرا طریق، یہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے. بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے دوست اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب چیریٹی کا کہا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کسی اور کے لیے بات کہی جا رہی ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. قائد کے لیے یا زعیم کے لیے بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو، لیکن میں یہ حقیقت بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اور جیسے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کے فضل سے پہلے ہی جو بھی ان کا ٹارگٹ ہے اس میں سے تقریباً 50% ہو چکا ہے، کچھ رہ گیا ہے. کوشش یہ کریں کسی کو ہرگز نہ دیکھیں کہ یار چونکہ میرے ساتھ جو دوست بیٹھے تھے انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا تو میں بھی، یا شاید یہ کہ میرے ساتھ والے نے تو بہت زیادہ دیے، میں یہ تھوڑے سے پیسے کیسے دوں. یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس کی کون سی قربانی کو قبول کرتا ہے. چاہے بہت چھوٹی سی قربانی ہو وہ ضرور کریں. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سارے پیسے ہیں یہ ویسے بھی جو مشہور ماہر اقتصادیات ہیں، فلاسفرز، وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان اگر اپنی زندگی پہ غور کرے تو 99% جو اس کی انکم ہوتی ہے وہ اپنے اوپر صرف نہیں کر رہا ہوتا. جو وہ اپنی محنت سے پیسے کما رہا ہوتا ہے اس میں 99% وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے جس کا کبھی بھی ریٹرن اس کو واپس نہیں ملنے والا. صرف وہ پیسے جو وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے خرچ کرتا ہے، صرف وہی پیسے وہ اس کے ہوتے ہیں. اس لیے میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آج جانے سے پہلے جو بھی ہے، اگر میں بلکہ میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں، اصل مقصد کیا ہے ساروں کو شامل کرنے کا. خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت میں مثلاً حج صاحب نے حضور کی منظوری سے خاکسار کو ایک برکینا فاسو میں اسکول بنانے کا مشن ملا جو کہ 40,000 پاؤنڈ کا ہے. آپ یقین کریے کہ مجھے جلسے پہ ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرا نام نہ لیں تو صرف یہ اسکول میں بنانا چاہتا ہوں. تو خدا کے فضل سے لوگ ایسے موجود ہیں. جب مشورہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کو جزاک اللہ کہہ دیں، اس میں ساروں کو شامل کرنا ہے. ہر ایک کو نیکی کا، جیسے ہے نا کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں میں نہیں، کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا، یا شاید یہ شعر مجھے اصل نہیں یاد، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کے 20 پاؤنڈ کی وجہ سے، دیکھیں یہ جو چیریٹی ہے یہ جانی کدھر ہے، یہ چیریٹی جائے گی بلائنڈ لوگوں کے آپریشنز کے لیے جائے گی. یہ چیریٹی جائے گی جو آرفن بچے ہیں ان کی پڑھائی کے لیے جائے گی. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے 40 پاؤنڈ کی وجہ سے ایک افریقہ میں کیٹریکٹ کا آپریشن ہو جائے گا اور کوئی دوبارہ سے دیکھنا شروع ہو جائے گا؟
मैं आपका नहीं कह रहा, हमारा आज बतौर कल हमारे बतौर एक सकाफत कुछ ऐसी बन चुकी है कि हम इंतज़ार में रहते हैं कि इंशाअल्लाह जिस दिन हम मिलियनर हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हम किसी बंदे की ज़रूर खिदमत करेंगे। हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह जिस दिन हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, उस दिन हम लोगों की मदद करना शुरू करेंगे। आप यकीन करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फज़ल के साथ पहले से ही मिलियनर लोग हैं, आप और हम लोग। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि एक दोस्त है, जाहिर है किसी का नाम मेंशन नहीं किया जा सकता, वो किसी वजह से आंखों की बसारत से महरूम हो गए। जब मैं उनके पास बैठा, जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब पता चला है कि यार वाकईतन मैं किसी ज़माने में करोड़पति हुआ करता था जब मेरी आंखें होती थी। तो हम जिन्हें अल्लाह ताला ने ये मौका दिया हुआ है, हम अभी उस इंतज़ार में हैं कि एक दिन आएगा कि हम मिलियनर बनेंगे, तो हम ऐसे लोगों की बात करेंगे। मैं किसी के कलाम में भी, किसी की बात में भी इतना असर नहीं हो सकता जितना इमाम वक्त की है। आपने फरमाया कि हो जाओ खाक मर्ज़ी मौला इसी में है, कि इंसान खाकसारी में, आजिज़ी में मट्टी हो जाए। मैं ये बात कोई इस वजह से नहीं कह रहा, मैं अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, फिर मैंने कहा कि नाम मेंशन नहीं किए जा सकते। असल मकसद ये बताना रहता है कि खुदा ताला के फल के साथ आप लोग, हम लोग पहले से ही करोड़पति लोग हैं। आप यकीन कीजिए, मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, उन्होंने मुझसे ऐसे बात की, तो वो बंदा अभी मेरे से बहुत यंग है, बहुत खूबसूरत नौजवान है, मैं किसी बाहर के बंदे की बात नहीं कर रहा, वो हम में से। मैंने कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आई, आपके आज मेरे से मजाक के मूड में है। वो मुझे एक अलग कमरे में ले गए। वही बात उन्होंने कहा कि यकदम कुछ ऐसा हुआ है कि मेरा वॉइस बॉक्स, जिंदगी बचाने का एक ही तरीका था कि वॉइस बॉक्स निकाल दिया जाए। और बतौर शायर मैंने बताया लोगों का, मुझे दुनिया के बहुत बहुत बड़े जो बर्बाद लोग हैं उनके पास बैठने का भी मौका मिला है। मुझे अल्लाह ताला के फजल के साथ, जैसे आप सबको मिलता है, ऐसे मुल्कों में जाने का भी मौका मिला है जहाँ पे जो बूफे होते हैं उन्होंने लिखा हुआ होता है कि अगर आप चल के हर फूड तक जाएं तो आप आज 5 मील चलेंगे, इतने खाने लगे होते हैं। और मैंने ऐसे भी जगह देखी है जहाँ पे बच्चे जो हैं, मैंने जैसे आपने शुरू में कहा, एक डायरी मैंने दमिश्क की जेल में उन लोगों के भी इंटरव्यूज़ किए हैं जो 30-40 साल से जेल में थे और जिनको एक वक्त की रोटी मिलती थी। और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना हाथ बढ़ा के अपने बच्चे को छू सकते हो, या अपनी माँ को छू सकते हो, या अपनी माँ को देख सकते हो, या अपनी मर्जी से 10 कदम चल सकते हो, तो तुमसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो हमारी चैरिटी होती है, ये जाती है उन लोगों को, हमारे 30 या 40 पाउंड से अगर किसी की आंखों की बिनाई वापस आ जाए तो यकीन करें हमारा वो जो दिन है शायद वो अल्लाह ताला की नज़र में एक कामयाब दिन लिखा जाए। इसलिए कोशिश करिए, चैरिटी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई सईद साहब अपने लिए पैसे नहीं मांग रहे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अमीर साहब बाद में तशरीफ़ लाई, हम खड़े होकर आपका इस्तकबाल नहीं कर सके, लेकिन वो मुझे, चूँकि बात चल रही थी, तो बात ये है कि ये जो सारे फंड्स हैं ये किसी की भी पॉकेट में नहीं जाएंगे, ना ये जो आज कुछ खाना खिलाया जा रहा है ये उसके लिए भी नहीं, उसके लिए भी कायद साहब ने खुद किया। ये जो आपके सारे पैसे होंगे ये उस चैरिटी में जाएंगे। कोशिश करिए, सोचिए कि क्या आपके 50 पाउंड से 40 पाउंड से अगर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो 1-2 दिन इंसान कम खा ले, लेकिन फिर भी
इस चैरिटी में ना सिर्फ खुद हिस्सा लें बल्कि अपने बेगम को, अपने बच्चों को प्राउड होने दें। लेट देम बी प्राउड। उनको जाके बताएं कि आज खुदा के फल से मैं ये काम करके आया हूँ। दुआ करना कि अल्लाह ताला इसे कबूल करे। आपकी एक छोटी सी नेकी की वजह से किसी की बिल्कुल दुनिया बदल सकती है। इसलिए किसी का कोशिश ना करें कि या मैं फिर वही अर्ज के उसकी वो जाने उसे पासे वफा था या न था। किसी पे हरगिज नहीं देखना। मैं अभी हमारा फिर मैं कहूँगा अपने बात कर रहा हूँ। एक बच्चा पाकिस्तान से चला जर्मनी जाने के लिए, कारों पे, बसों पे। फिर वो एक जगह गालबन ग्रीस एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां जाके उसके पैसे ख़त्म हो गए। उसने कहा कि मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं थे, ट्रैवल के भी पैसे नहीं थे। सड़क किनारे खड़ा हुआ था तो एक कार आके रुकी। किसी ने पूछा कि क्यों ऐसे खड़े हो परेशान। उसने बताया कि मेरे ये हालात हैं, मैं पाकिस्तान से चला हुआ हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैंने फलां मुल्क पहुँचना है। उस बच्चे का मुझे फ़ोन आया। वो बच्चा, बार में बच्चा कह रहा हूँ, 25 साल का नौजवान है, मूंछें रखी हुई हैं, ऊंचा लंबा बंदा है। वो बंदे ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, 200 मील ड्राइव करके उसको उतारा और उतरते हुए उसे 200 यूरो दिए। हमें कभी अपने तौर पे अपने आप को बड़ा सोचना है कि अगर हम किसी जगह खड़े हों और ऐसा नौजवान मिले, हम क्या करते हैं? हम लोगों की खिदमत के लिए क्या कर रहे हैं, या क्या हमने कभी ऐसा किया है? मुझे यकीन है कि हम में से बहुत से लोग हैं जो इससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बाज़ मेरे जैसे भी होते होंगे जो ऐसे बंदे को देख के सोचते होंगे कि यार ये झूठ कह रहे हैं। या कोई शख्स हमारे पास आए कि यार मैं भूखा हूँ, तो हमारे ज़हन में आए कि यार ये महज बहाना कर रहा है। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था या ना था। किसी ज़रूरतमंद ने अगर हमसे मदद मांगी है, हमारा काम है कि हम उसकी मदद करें। बाकी अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। बाज़ वक़्त अल्लाह ताला किसी इंसान के खजूर का एक टुकड़ा दिया हुआ, उसके बदले भी वो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। तो अल्लाह ताला करे। और यकीनन हम जो है ये खिदमत खल्क में पूरी दुनिया में अल्लाह ताला के फल से हमारी जो जमात है ये सबसे आगे है, और ये सब आप लोगों की वजह से। मादर चाहता हूँ कैसे आपका वक्त लिया है मैंने। हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, एक लखनऊ की तरफ भी है, एक हमारा खुदामंद ने नवीद साहब ने किया बॉक्स है। तो जितना भी आपकी तरफ से हो सकता होगा, जज़ाकल्लाह भाई साहब, आपने बहुत ही मेरे ख्याल से हम सबको एक एहसास दिलाया है। ये एहसास बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि कभी हम सोचते नहीं हैं इन पहलुओं के ऊपर। तो ये सोच जो सी है ये हमारी उजागर करने के लिए जज़ाकल्लाह आपका बहुत बहुत। और आमिर साहब ने शुरुआत कर दी है इस डब्बे में, तो इंशाल्लाह जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे ज़रूर कोशिश करें अपनी तरफ से जितनी आपकी इस्तात है उसके मुताबिक। आपको भी काफ़ी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, मुबारक साहब के मतलब कुछ कहना तो ऐसे ही है, चांद को चिराग दिखाने वाली बात। जहाँ ये लोगों को हंसाते हैं, वहाँ रुलाते भी हैं। जहाँ रोना पड़ता है या जहाँ रोने को दिल चाहे इंसान का, वहाँ वाक़ईतन रुलाते भी हैं। अभी रास्ते में आते हुए मैं इनकी एक नज़म गा रहा था। मेरा ताल्लुक़ चूँकि आप लोग जानते हैं नज़म से है, नज़म नात ख़ानी से, तो मैं शायरों की दुनिया में भी नज़म की वजह से दाखिल हुआ हूँ। इसी तरह इन भाइयों की नज़में पढ़ते पढ़ते बस अपनी भी लिखनी शुरू कर दी। तो मेरा दिल करता है कि जब इस तरह के माशाल्लाह अच्छे शायर शुरा मौजूद हों, तो अगर मैं उनकी नज़म उनकी मौजूदगी में पढ़ूँ तो ये भी एक सादत होती है। तो उसके बाद फिर मैं अपना भी छोटा मोटा कलाम जो है वो एक थोड़ा सुनाऊँगा आपको। तो अभी ये है कि एक नज़म इन्होंने पिछले दिनों लिखी। मुमकिन है ये ख़ुद किसी मुशायरे में वो ना पढ़ें क्योंकि उसकी जो है वो तरतीब या कह ली या वो इस तरह की है कि मौके माल की मुनासबत से वो शायद ना पढ़ सकें, मगर मैं पढ़ूंगा। हाँ नहीं, सही बात है। अब पेश करता हूँ ज़रा। बेटियों के मुतल्लिक़ है, बेटी की रुखसती के मुतल्लिक़ है। ऐ मेरी लाडली
اے میری لاڈلی میری نور نظر. میں ایک یہاں صرف بتاتا چلو اس کا پچھلے دنوں ایک کسی بیٹی کا میں جانتا نہیں اس کا فون آیا کہ میری رخصتی ہے تھوڑے دنوں تک کچھ لکھیں. تو میں نے کہا کہ میرے سے لکھا نہیں جاتا, ایسے کوئی مجھے کہے تو میں نہیں لکھ سکتا. بہرحال اس کو میں نے کہہ دیا, لیکن سچی بات ہے اس کے بعد تقریباً 10 منٹ میں لکھ کے تو میں نے بیٹی کو بھی بھجوا دی. پاکستان کی ہماری بیٹی ہے, سب بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. بیٹی خوش ہو گئی ہماری. پھر انہوں نے اور عمر شریف صاحب ناصر عثمان صاحب سب نے مل کے اس بیٹی کو بھجوایا. تو اس بیٹی کا آیا کہ میں اپنی شادی پہ بڑی خوش ہوں. سوری میں یہ تو اس نظم کی نظم تو لمبی ہے, 2 بند میں پیش کروں گا اس وقت. اے میری لاڈلی میری نور نظر, میری دھڑکن میری جان لختے جگر, اے میری لاڈلی میری نور نظر. چھوڑ کر آج یوں اپنے بابل کا گھر, میری گڑیا چلی ہے پیا کے نگر, میری گڑیا چلی ہے پیا کے نگر. یہ دعا ہے میری التجا ہے میری, مسکرائے میری جان تو عمر بھر. اے میری لاڈلی میری نور نظر. میرا آنگن جہاں تو ہوئی تھی بڑی, تیری گڑیا بھی تک وہی ہے پڑی. میرا آنگن جہاں تو ہوئی تھی تیری گڑیا بھی تک وہی ہے پڑی. کہہ رہی ہے مجھے آنسوؤں کی جھڑی, کہہ رہی ہے مجھے آنسوؤں کی جھڑی. جدائی کا دن رخصتی کی گھڑی, جدائی کا دن رخصتی کی گھڑی. الوداع 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 کہہ رہا ہوں تمہیں چشم تر. اے میری لاڈلی میری نور نظر, میری دھڑکن میری جان لختے جگر, اے میری لاڈلی میری نور نظر. بہت اعلیٰ جی, بہت. اب ایک نعت پیش کرتا ہوں جو خاک صاحب نے خود ہی لکھی ہے. دل میں ہے ان کے روزے پہ جانے کی آرزو,
सोया हुआ नसीब जगाने की आरज़ू, सोया हुआ नसीब जगाने की आरज़ू, जाती है मुझको लेके कहकशां से परे, हुब्बे नबी को दिल में बसाने की आरज़ू, हुब्बे नबी को दिल में बसाने की आरज़ू, उनका ज़माना देख रही है निगाह मन, उनका ज़माना देख रही है निगाह मन, मुझको नहीं किसी भी ज़माने की आरज़ू, मुझको नहीं किसी भी ज़माने की आरज़ू, बागों बहार रखती है मेरे शऊर को, गलियों में उनकी फूल बिछाने की आरज़ू, गलियों में उनकी फूल बिछाने की आरज़ू, हर लम्हा मौजज़न मेरे दिल में दोस्तों, उनके दयार जाके नाने की आरज़ू, सोया हुआ नसीब जगाने की आरज़ू, आँखों में बन के फिरते आजिज़ के रोशनी, आँखों में बन के फिरते आजिज़ के रोशनी, शहरे मदीना में नजर आने की आरज़ू, शहरे मदीना में नजर आने की आरज़ू, सोया हुआ नसीब जगाने की आरज़ू। ऑडियंस से एक छोटी सी आपकी तरफ से ख्वाहिश है कि दो शेर अगर आप दो घड़ी सब्र से काम लो, कि आप एमटीएफ पर सुनते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी हम कहते हैं कि लाइव एक हमें दो शेर छोटे से। मेरी ये ख्वाहिश जो कि लाउड स्पीकर को कंट्रोल कर रहे हैं उसको जरा ऑन ही रहने दें, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता जब तक ये वापसी मेरे कानों में आवाज़ साउंड के साथ ना आए। तो जो ही आप बंद करते हैं तो मेरा वो टेम्पो रहता नहीं है उस तरीके से। सही बात है, तो मज़ा लेना है तो फिर इसको थोड़ा सा। दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफत जुल्म तो जोर
टल जाएगी। आए मोमिन से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा, रुत बदल जाएगी। दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, दो घड़ी सब्र से। तुम दुआएं करो, वो दुआएं तो थी जिसने तोड़ा था सर किब्र नमरूद का। है अज़ल से ये तकदीर नमरूदियत, आप ही आग में अपनी जल जाएगी। है अज़ल से ये तकदीर नमरूदियत, आप ही आग में अपनी जल जाएगी। दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, दो घड़ी सब्र से। खून शहीदाने उम्मत का कम नजर आएगा, कब गया था कि अब जाएगा। खून शहीदाने उम्मत का कम नजर आएगा, कब गया था कि अब जाएगा। हर शहादत तेरे देखते देखते फूल फल आएगी, फूल फल जाएगी। हर शहादत तेरे देखते देखते फूल फल आएगी, फूल फल जाएगी। दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, दो घड़ी सब्र से। बहुत माजरत है, दरअसल गला आज वाकई वो उस लय तक नहीं जा रहा था, तो थोड़ा सा मुश्किल हुई है मुझे। वो शेर जो है ना, असल में ये नज़म बहुत जोर लगा के पढ़ने वाली है, और मैं आज रास्ते में भी सारा इनको सुनाता हूँ तो गला उस वक्त उस पोजीशन में नहीं। कोशिश कर रहा था कि ना महसूस हो, मगर महसूस हुआ कि थोड़ा सा, मगर इंशाल्लाह कभी फिर सही। ठीक है जी, इजाजत। बेहद शुक्रिया। सामीन को वैसे बता दें, हम बताते चले, प्रोग्राम आपको साथ साथ बताते जाए ताकि आप बहरहाल मुतमईन रहें। आप ये ना समझें कि अभी कोई 70-80 शायर बाकी हैं। बात का तो होता है, एक दफ़ा मुशायरा हो रहा था जर्मनी में, मैंने बीच में कहा कि कोई सवाल पूछना हो तो एक नौजवान जी, मैंने कहा जी कहते खाना कब खुलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी करीब आ रहा है। हमारे पास सिर्फ मुबारक साहब जो कि मशहूर शख्सियत है शेफील्ड के, खुद भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो हैं। शाहिद रिजवान साहब हैं। उसके बाद हम सदर महफिल को सुनेंगे और खूब सुनेंगे, और उसके बाद इख्तिताम पे पहुँचेंगे। एक दो फरमाइशें आई हैं कि जी बेटी वाली दोबारा पढ़ी जाए, लेकिन बहरहाल वो वक्त की मुनासबत से हम देखेंगे। आज मुबारक साहब, अब मैं मुबारक अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज स्टेज पे आए, हमें अपने चंद अशार से मौजूद करें। मुबारक अहमद साहब।